क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं और 10 में से सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। बेरोजगारी बेरोजगारी इस बीमारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या ये सिस्टम हमें फेल करने के लिए डिजाइन किया गया है? क्या ये सिस्टम हमें धोखा दे रहा है? आइए जानते हैं तनय प्रताप उर्फ सबके चहीते तनय भैया से। और आप देख रहे हैं द स्वीट स्पॉट, द शो विद द स्पाइसीएस्ट बिजनेस सीक्रेट्स। तुमने कहा कि यार दिस इज हॉट। Your face is getting red and हाँ, redder, उसमें guys are slowly red हो रहा है। Okay, Tanay, welcome to the show. थैंक यू। Rules of the show are super simple. You start with the mildest sauce and then you end at this spicy sauce. Okay. After 3 sauces, if you're feeling spicy, you can ask for your lifeline. Okay. You just have to say the 4 words, hit me with the sweet spot, and then you can use the gulab jamun. So the first question I have for you is, why is an average 21-year-old in India today is ready to give up so many years of their lives? Like for UPSC, it's around 10 plus years, right? Why do you think that's the case, at least in India nowadays? Why does it surprise us? Let's see the question from a different angle. This surprises us because we are coming from a place where we were taught कि यार there are enough opportunities for you, just need to go ahead and grab it. ठीक है। That is entirely false. Completely false. ये तो notion ही गलत है कि there are enough opportunities in this world. There are very few opportunities in this world. If you get 10,000 applications for a job, you will first filter them on what is their quality of English, written English. कवर लेटर पे ही तुमने 1000 लोगों को निकाल दिया, 9,000 लोगों को निकाल दिया. सही है. Then you will see अच्छा कौन से कॉलेज से है, कौन से स्कूल से है, एकदम ही अननोन है तो then you will remove that. Then you will say अच्छा कहीं फेल हो गया क्या, 10th में 12th में कम ग्रेड्स आए क्या, you will remove. तो क्या बचा यार 10,000 में you are selecting 5 people out after these filters. फ्लिपकार्ट के शॉपिंग में से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं. So the system which is designed to fail you, not to make you successful. The only system which is designed, which is unbiased and coherent and a beautiful system is government exam. क्योंकि वो unbiased है यार, उसको फर्क नहीं पड़ता ना. यूपीएससी में तुम देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ. तुम किसी जॉब में गए, तुमसे नहीं हुआ काम वहाँ, you hated it and you left that job in 2 months. Then you went to second job and then you hated it and then you left that job in 3 months. ठीक है। अब 2 बार फेल हो गए आप तो. अब आपके ऊपर कौन लेगा तीसरी बार? जब आपके रेज्यूमे पे आप वो 2 जॉब डालोगे, नहीं यार ये तो टिकती नहीं है. बट यूपीएससी कितना प्यारा है, देखो 1 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 3 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं. हर गवर्नमेंट एग्जाम में यही है. उल्टा जितनी बार नहीं होता है उतनी बार आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपने बोला सिस्टम ब्यूटीफुल है. गवर्नमेंट एग्जाम का सिस्टम ब्यूटीफुल है. बिल्कुल. आपको सिर्फ अगर यूपीएससी का एग्जाम्पल ले ले, 11 लाख लोग वो एग्जाम्स देते हैं, 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं. What is the percentage? 0.09%. It's not like their odds are improving anywhere else. बिल्कुल. Then how is this system? And it's not just that. There are pressures from coaching centers. There are pressures from everywhere, basically. That doesn't make the child's quality of life any better, na? बिल्कुल. But option क्या है? Are you saying that the rejection percentage is higher everywhere else compared to UPSC? That is why when a system is thriving, we need to understand why that system is thriving. क्योंकि लोग तो बेवकूफ नहीं है. बाकी जगह तो उनको एक चांस भी नहीं देंगे ना, इंटरव्यू के लिए भी नहीं कॉल करेंगे. यहाँ पे तो तुम्हारे पास पूरा फेयर चांस है. प्लस देखो, आप कहीं से बैठ के तैयारी कर सकते हो. आपको दिल्ली नहीं जाना इंटरव्यू के लिए. कितने वॉक-इन्स होते हैं. मैं तो बच्चों से बात की ना, हमें तो 5-10 हज़ार बच्चों से बात कर लिया. वॉक-इन्स के लिए बेचारा वो बच्चा जो है, बेचारा नहीं है, उसने चांस लेना है तो पटना से जा रहा है दिल्ली में 1 रात रुकना है. उसको किसी के यहाँ रुकेगा, उसका एहसान लेगा, वो ट्रेन का खर्चा होगा, वापस आएगा. किस लिए? ताकि वो वॉक इन में जाकर खड़ा हो सके शर्ट पहन के. और वहाँ उसको एक इंटरव्यू का चांस भी नहीं मिलता. कई बार रेज्यूमे हाथ में लेते हैं, बोलते तुम ठीक है नहीं. बट तने सिस्टम का फ्लॉ है. देयर आर टू मेनी ड्रीम्स पिन्ड टू दीज लिटिल एग्जाम्स. और इट्स नॉट लाइक ये एग्जाम दे दिया 10 साल के लिए तो 10 साल के बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी. अच्छी तो होगी. कहाँ से होगी? एक बच्चा है, उसको कहीं जॉब तो लग नहीं रही है, क्योंकि मैंने 5 पॉइंट शुरू में ही गिना दिए थे. अब वो घर पे बैठा है, रोज उसकी बेइज्जती है कि भाई क्या कर रहे हो, नालायक हो, कुछ नहीं किया जिंदगी में. अब वो टाइम मशीन से वापस जाके तो स्कूल में पढ़ नहीं सकता है. स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया ताकि आप फेल कर जाओ. ठीक है, ताकि कुछ ही लोग निकल पाए अच्छे. क्यों 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 बच्चे को फेल करने देते हैं?
क्यों अच्छे से डिजाइन नहीं करते सिस्टम को? अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ हाँ. कि तुमने ये खाना मान लो जोमेटो से मंगाया, तुमने जोमेटो को तुमने 100 ऑर्डर दिए और 2 ही ऑर्डर डिलीवर हुआ जोमेटो से, तो तुम क्या वो ऐप यूज करोगे? फोन फेंक दोगे यार, तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा इंटरनेट कंज्यूमर प्रोडक्ट से, है ना? हाँ. एक स्कूल में 50 बच्चे जाते हैं एक क्लास में, और 2 ही लोग अच्छे जॉब में निकल पाते हैं या अच्छे कॉलेज जा पाते हैं, 48 फेल होता है। तो 48 का फेलियर सिस्टम का नहीं होता है, 48 का फेलियर इंडिविजुअल का हो जाता है। ये कैसा सिस्टम बनाया है? तो आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट एग्जाम का फॉल्ट नहीं है, स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट किसी का है ही नहीं। मैंने बस ये कह रहा हूं कि अलग अलग सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और जब आप इन सिस्टम्स को साथ में देखोगे तो आपको लगेगा कि बच्चे के पास जो बच्चा कर रहा है अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करके कर रहा है, इससे बेटर ऑप्शन उसके पास नहीं है। और अगर इससे बेटर ऑप्शन होना चाहिए तो आपको उस सिस्टम को बनाना पड़ेगा। यू नीड टू व्हील दैट इनटू एग्जिस्टेंस। बट हर सिस्टम को फेयर होना चाहिए। आई फील कि गवर्नमेंट एग्जाम बहुत फेयर सिस्टम है, क्योंकि वो आपके प्रीवियस, कहते हैं ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, गंगा में जाके सारे पाप धुल जाते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम इस देश की गंगा है, वो सबके पाप धो देती है। Fair. अच्छा, changing tracks a little bit. Now we'll come to like you know how Byju's, an academy, and all of that help with prep. But are they really helpful? First question. And secondly, is there an alternative to these? बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है ये तो। This will get me into trouble. कोई बात नहीं। All diplomacy on. नहीं, ऐसे नहीं करते। देखो, डिप्लोमेसी तो स्विच ऑफ ही रहनी चाहिए। Are they really helpful? I think they wanted to capture a market जिस मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार this is hot. तो प्राइस सेंसिटिविटी है। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, और बहुत लोगों को वो भी चाहिए एज अ प्रोडक्ट। हाँ। जैसे मैंने कहा इस बच्चे के बारे में, मान लेते हैं इसका नाम राहुल है। हाँ। ठीक है, नाम तो सुना होगा। तो राहुल अपने गांव आ जाता है। हाँ। वो बोलता है दिल्ली में रहने के 15,000 लग रहे थे, खाने के 10,000 लग रहे थे, 25,000 महीने के लग रहे हैं, चलो और कम कर देते। 15,000 में बेचारा पूरी तरह से चलो कर रहा था। मैं 3,000 रुपए का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, तैयारी कर लूंगा। मुझे तो बस थोड़े क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, थोड़ा एक कभी डाउट हो गया तो किसी से पूछने के लिए चाहिए, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक खंबा, एक कंधा। सपोर्ट तो यही होता है, मुझे नहीं चाहिए पूरी बॉडी। तो भाई उसने कहा कंधा ले लेते हैं, 3,000 में कंधे मिल रहे हैं महीने के। बट इनका धंधा क्या है? वो कैसे पैसे बनाते हैं? ऐसे ही खंबा बन के वो बेचते हैं कि हम खंबा है। वो बेचते हैं कि भाई आउटकम्स तो देखो, सबको पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में आउटकम तो तुम्हारे हाथ में है, हम तो बस सपोर्ट सिस्टम है। हमें क्या करना है? फिजिक्स वाले का क्या है? मतलब वो कैसे धंधा करता है? वो भी कंधा बन के ही धंधा करता है। देखो, धंधा तो इस सिस्टम का, गवर्नमेंट एग्जाम का धंधा तो सिंपल है। क्या है? कंधा बनना। चाहे आप कोचिंग सेंटर हो, चाहे आप अनअकैडमी हो, या फिजिक्स वाला हो, सबका धंधा है कंधा बनना। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है, करना तो आपको ही है, और फेयरली सबको ये भी पता है कि कोई टीचर, कोई कोचिंग ऐसा मैजिक नहीं कर सकता है जिससे जितने बच्चे वहां जाए सबका हो जाए। IIT JEE में बंसल का बहुत नाम है। तो बंसल, मैजिक बंसल में है कि मैजिक इस बात में है कि बंसल का इतना नाम है कि वहां पर सब लोग बेस्ट बच्चे फिल्टर करके आ जाते हैं। हाँ, और जिसके पास पैसे भी है। मतलब पैसा तो एक सेकेंडरी चीज है, वो तो हर जगह है, बट पैसे नहीं भी हैं, पैसे हों या कम भी हों तो भी लोग बंसल जाना चाहते हैं। ओके। और बंसल में क्यों? क्योंकि सक्सेस रेट ज्यादा है। सक्सेस रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि सब, अगर सारे अच्छे घोड़ों को एक ही मैदान में दौड़ाओगे, एक दूसरे को रेस करके, घोड़े तो बेटर हो ही जाएंगे। करेक्ट। स्कूलिंग भी यही करता है। मेरे शहर में, बोकारो में एक स्कूल था, DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल। बड़ा अच्छा स्कूल था। तो मैं कभी नहीं पढ़ा वहां पे। ठीक है, तो मेरे पापा से कोई पूछा था कि आपका बच्चा इतना स्मार्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं था भी, अभी भी हूँ, तो आप उसको DPS में क्यों नहीं डालते? बचपन से ही ऐसे हो। मतलब जो है, फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो है। मम्मी कहती है कि तुम स्मार्ट हो और मेरे को दिखता है, तो क्यों नहीं? मतलब इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? इसको तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलना चाहिए ना। तो मेरे पापा से लोग पूछते थे, तो मेरे पापा बोलते थे कि अगर मैजिक DPS में होता तो DPS क्या करता? 60% वाले बच्चों को लेता जिनका 10th में 60% आया है, और उनको 92% दिलवा देता, उनका IIT JEE निकलवा देता। सही है। लेकिन DPS क्या करता है? 90% से ऊपर वाले बच्चों को लेता है, सबको एक जगह रख देता है और बोलता है कि अरे देखो हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट हुआ है शहर में। तो क्या मैजिक है उसमें?
कोई मैजिक नहीं है, मैजिक तो सुपर 30 में है ना, सही है, सुपर 30 में मैजिक सुपर 30 में मैजिक सही है, है, बाकी perfect. सब तो कंधा है, तो कंधा के लिए क्यों परेशान होना यार, कंधा किसी भी क्वालिटी का हो। फिजिक्स वाला का गेम बड़ा प्यारा सा है कि हम भी कंधा है, हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा एक्विजिशन सस्ता है तो हमने प्रोडक्ट को भी सस्ता रखा, उसके भी अपने सिस्टम्स बनेंगे, अपने प्रॉब्लम्स आएंगे, अपने चैलेंजेस होंगे, बट कोई बेटर नहीं है ओवरऑल सिस्टम में, बस प्राइसिंग का अंतर है, सस्ता कंधा, महंगा कंधा, बहुत महंगा कंधा। गॉट इट With that said, right, अभी everyone has a mobile phone. जैसे आप बता रहे थे कि घर पे बिजली ना हो पर मोबाइल फोन तो जरूर रहेगा. How is this going to change the way people are going to apply for these exams right now? Is this going to make more people apply? एक्सेस टू इंटरनेट, और ये एआई इन बड़े बड़े लोगों को रिप्लेस करेगा। ना तो मैं आई डोंट सी दैट मच इन फ्यूचर, तो आई डोंट नो, एआई तो कुछ खास कर नहीं कर पाएगा अभी। क्यों? कुछ किया ही नहीं है एआई ने, इतना हल्ला कर रखे हैं लोगों ने, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर दिया, अभी उनको नहीं समझ में आता, उनको लगता है कि मैजिक है, बट मैं तो सिस्टम्स पे काम किया है तो मुझे पता है कि इसमें इतना मैजिक नहीं है। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर दिया, हाँ, और वो बात करने लगा, और अच्छा खासा बात कर रहा है, अच्छा खासा, वो स्क्रिप्ट लिखता है और क्या चाहिए। तो बस उतना ही है ना, 15,000 का ही काम कर रहा है ना, स्क्रिप्ट लिखने का काम 15-20 हज़ार का ही होता है, और उसी लेवल का वो काम करता है। क्या वो सर्जन को रिप्लेस कर दिया, क्या उसने कैंसर रिसर्च में हेल्प कर दिया, क्या उसने कार नहीं चला पा रहा है यार, उबर ड्राइवर का 25,000 का काम नहीं कर पाता वो, छोड़ो यार, रुम्बा है ना, रुम्बा, हाँ, इससे रूम साफ नहीं होता ढंग से, कितना खराब है यार वो, मतलब वो यूएस में ही काम कर सकता है जहां पे कारपेट है, इंडिया में रख दो परेशान हो जाता है। दिस टेल्स अस मोर अबाउट इंग्लिश मेजर्स देन एनीथिंग एल्स कि एआई आपको रिप्लेस कर रहा है, क्यों पढ़ रहे हो? और जो लोग बोल रहे हैं कि बड़ा मैजिक होगा, बड़ा मैजिक होगा, वाओ वाओ वाओ, वो लोग वेब 3 के बारे में भी ऐसा ही बोल रहे थे कि बहुत मैजिक होगा। Web 3 तो Tanay is throwing darts right now. अरे यार कल मैं देख रहा था एक ऐड आया कि एआई का 5 दिन का वर्कशॉप है, एआई का वर्कशॉप क्यों करना पड़ रहा है? ये तो एपिक फेलियर ऑफ एआई है, अगर आपको 5 दिन उसको यूज कर, ये फोन मैंने लिया, ये आईफोन है, इसका 5 दिन का वर्कशॉप होता है क्या? यहीं पे तो एपिक फेल, अगर आपको किसी चीज को यूज करने के लिए 5 दिन का वर्कशॉप लेना पड़ रहा है तो वो क्या है? उसका तो मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आर्टिफिशियल बेवकूफी है? Okay, coming back to Vamsi's question. हाँ, सो आई डोंट थिंक कि एआई कुछ करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस टू इंटरनेट आई फील इज अ गेम चेंजर, ठीक है? एक्सेस टू इंटरनेट विथ द लैंग्वेज मॉडल विच वी हैव बिल्ट ऑन एआई नाउ might be another game changer where you can ask questions, someone can understand and search better. Correct. Because Google at the end is a recommender system. Recommendation है ना, आपके लिए वो सर्च रिजल्ट्स लाता है, तो अगर उसके ऊपर एक लैंग्वेज मॉडल लगा देंगे तो शायद हमारा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू लर्निंग और बेटर हो जाएगा। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ होगा एआई से और इंटरनेट से, इतना ही होगा। बट इसके बहुत इफेक्ट्स हैं, क्योंकि आप अगर आपके पास एक प्राइवेट ट्यूटर टाइप आ जाएगा तो शायद आप बेटर कंधा प्रोवाइड कर पाओगे। शायद आपको वीडियो में ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर था या इस क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचते हैं, तो ठीक है, मतलब मार्जिनली गुड यूजर इंटरफेसेस बन सकते हैं। आई फील वहां पर है वैल्यू, आई एम नॉट डिनाइंग दैट वैल्यू, बट उतना ही है, यूफोरिया नहीं है। हाँ, मतलब ये नहीं ब्लॉकचेन अच्छा है बट उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब जॉब ले लेंगे, एआई इज गोइंग टू टेक योर जॉब। कमेंट में मुझे एक आदमी बता दो जिसका जॉब एआई से गया है। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे लिखना ले लेगा, डिजाइन ले लेगा, डिजाइन ले लेगा, डिजाइन सिस्टम्स ने बेसिक डिजाइन का मैंने देखा। अब मैं इस पे भी बात कर लेते हैं 2 मिनट, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा तुमने खोला। हाँ ठीक है, ओके। तो किसने कहा कि एआई जो है वो डिजाइनर्स के जॉब ले लेगा, ठीक है? उन्होंने कहा अच्छा, ये मैंने एक थ्रेड बनाया ट्विटर पे, ये देखो इस पे डिजाइनर के जॉब्स ले रहा है, देखो मैंने लोगो डिजाइन किए। हद के हद, मतलब खाने साइम बोलना नहीं चाहिए, मतलब हद के हद टट्टी लोगो उसके सारे के सारे, ठीक है? वो कैसे, मतलब हाउ डू यू गेट द ऑडेसिटी टू प्रेजेंट कि मैंने एआई से ये लोगो बनाया है, देखो। तो लोग बोलते प्रोग्रामर को रिप्लेस कर देगा। मैंने तो ट्राई किया, एक पूरा वीडियो बनाया, कुछ नहीं होता प्रोग्रामर को रिप्लेस, उसको कुछ नहीं आता है। प्रोग्रामर अगर उसको बताएगा कि बेटा ऐसे ऐसे लिख कर दो तो वो लिख कर दे देता है, पर कीवर्ड्स तो तुम्हें बता रहे हो, तो गूगल सर्च बेटर हो गया, इसमें इतना हल्ला क्यों मचाए हुए हो? इसीलिए वो 5 दिन का वर्कशॉप है अभी। कि आओ तुम्हें सिखाते हैं कि एआई इतना पेचीदा सिस्टम है कि उसको सीखने के लिए 5 दिन लगेंगे। एआई को छोड़ते हैं बट इंटरनेट को पकड़ते हैं। इंटरनेट इज ओपनिंग अप अ लॉट ऑफ पाथवेज फॉर यू टू एक्सप्लोर।
how will this change, say, the generation's perspective going forward? Because now it's not just government exams. They have access to other things. They're aware of other things. Tanay, you know you're doing really well, right? You were saying you can't handle spice. अभी तक पानी का ग्लास हाथ नहीं लगाया. तो मुझे मन Sweet कर रहा है, नहीं but मांगा. I am like कि ठीक है. ठीक है, मैं जी लूंगा. As long as I can avoid sugar, I am happy. कहाँ थे हम लोग? नहीं, पानी क्यों नहीं पी रहे हो? पानी पी सकते क्या? उसके लिए कुछ लाइफलाइन वगैरह नहीं यूज करना नहीं, होता है? कुछ नहीं, पानी तो पी सकते हो, पानी है. या because your face is getting red and हाँ, redder, वो तो guys are slowly red हो रहा है. कि वो रेड तो हो ही जाएगा. आई टोल्ड यू कि मुझसे नहीं हैंडल होता है, बट टॉलरेंस लेवल हाई है बिकॉज आई कम फ्रॉम बिहार ना, तो हम लोग तो लाइफ में बहुत बुरी चीजें देखे हैं. तीखा क्या होता है? आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि विल इंटरनेट चेंज थिंग्स और हैज इंटरनेट चेंज थिंग्स? वीडियो एक्सेस, लाइव वीडियो एक्सेस, एक्सेस टू डाउट क्लियरिंग लाइव, ये सब तो बहुत बड़े फायदे. अब and you also run in fact on this ability that internet gives you कि हाँ मैं वीडियो से पढ़ाऊंगा. दोनों डिफरेंट चीजें, थोड़ा सा समझते हैं. हाँ थोड़ा सा. हाँ okay. When we come to INVACT और NEO-G, it's very different. क्यों? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप क्या करते हो? आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाते हो. INVACT या NEO-G में क्या होता है? एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन भी किस चीज का है? कंप्यूटर का है. एक्सेल पर ही मॉडलिंग सिखा सकते हैं. अब इससे आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है? किताबों से ये भी सॉल्व हो सकता है. किताबों से तो लोग प्रोग्रामिंग पढ़ ही रहे Exactly. थे. जब आप किसी को वीडियो के थ्रू कोडिंग करते देखते हो तो आप स्टेप्स नहीं मिस करते हो, और आपको ये समझ में आता है कि यार ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसे जब मैं एक एक्सेल खोलता हूँ, चलो मैंने 10 टैब खोल लिए. 10 टैब में मैं फर्स्ट टैब से सेकंड टैब में रेफरेंस कर रहा हूँ, सेकंड टैब से थर्ड टैब में रेफरेंस कर रहा हूँ, रेफरेंस करके फॉर्मूला लगा रहा हूँ. ये कर रहा हूँ. जरा इसको किताब में लिख के दिखाओ. दिखो कि टैब 1 से ये फॉर्मूला यहाँ जाके सेल नंबर E3 B4 डालो. वो मर जाए बेचारा आदमी E3 B4, क्योंकि आपको वहां दिखता है क्लिक करते हुए. हाँ, सही है. मैं तो यही काम है दिन भर सोचना ना. हाँ, तो सही है. So even if we generalize this, right, हम बोल सकते हैं कि this is a more efficient system because we are all visual people. We see and we observe and we intake a lot of information. Why are schools necessary then? स्कूल तो चाइल्ड केयरिंग के लिए है ना. स्कूल पढ़ने के लिए थोड़ी भेजते हैं बच्चों को. ये elaborate. This couldn't be news to people. Like कोविड हुआ, बच्चा तो पढ़ा, 2 साल पढ़ा ना. हमारे पास तो डेटा है, बड़ा रीसेंट डेटा है ना. सही है. सब पढ़ें, सब एक क्लास भी निकाल लें. माँ बाप क्यों परेशान थे? क्योंकि माँ बाप को नहीं चाहिए बच्चे घर के अंदर. उनको बच्चों को जिस कोड के बीच में ही भेज देना था कि जाओ आप रहो स्कूल में, पूरा दिन स्कूल में रहो, हमारे पास खेलने के लिए आ जाना. मेरे पापा मम्मी तो बचपन में कहते थे, बिकॉज माई डैड इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, कहते थे कि यार गर्मी छुट्टी क्यों करते हैं इनका, दिन भर घर में रहते हैं, चकचक करते हैं, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा, एक तो स्कूल को फीस दो कि हमारे बच्चों का ध्यान रखें, उसमें गर्मी छुट्टी के लिए घर भेज देते हैं और पूरे महीने का फीस भी लेते हैं. मैंने कहा था गर्मी छुट्टी देने के लिए. Your dad, it sounds like a very interesting person. तभी तो हाँ, पर्सनालिटी कहीं से तो आती है ना. तो कहीं से तो आएगी ना. तो स्कूल तो बच्चों को बिजी रखने का तरीका है. हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहे थे. गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो स्कूल में नहीं कराते, और 2.5 करोड़ जनता इंडिया की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करती है. तो इसका मतलब स्कूल में सबको फेल कर दिया वहाँ पे. अब आप अपना देख लो, किसी का देख लो. तो MBA में आप जाते हो करने, आपको पूछा जाता है केस क्वेश्चन, गेस्टिमेट्स, बट करते क्या हो? एक्सेल ही तो करते हो दिन भर बैठ के. एक्सेल और PPT. एक स्किल चाहिए जिससे आपको डे टू डे काम करना है. वो स्किल या तो प्रोग्रामिंग हो सकती है या एक्सेल हो सकती है. मुझे लगता है कि दो ही स्किल्स हैं बड़े बड़े अच्छे वाले. सही है. तीसरा स्किल क्या है? फिग्मा. अगर फिग्मा कर लिए, फिग्मा करने का मतलब क्या है कि आपने 1000 डिजाइन बना लिए तो आपको आ ही जाएगा डिजाइन भाई. ऐसा क्या डिजाइन स्कूल में जाके मट्टी के साथ खेलते हो कि कुछ सीख जाओगे बड़ा. टाइम पास कर रहे हैं, करने दो. AI बोलते रहते हैं. कितने लोग AI के एल्गोरिथम पे काम किए हैं? लिटरली हाउ मेनी पीपल हैव. और जिन्होंने सच में AI पे काम किया वो कहाँ से पढ़े हैं? वो तो मतलब 50, 100, 500 लोग. मतलब डीप माइंड, वो सैम अल्टमैन की कंपनी का नाम क्या है? OpenAI. कितना खराब नाम है, तो इसलिए मैंने लिया नहीं. कितने डीप लर्निंग इंजीनियर्स हैं उनके पास, इतने से. और AI के कोर्स तो भर के लोग कर रहे हैं. तो एजुकेशन तो बस टाइम पास है यार. सब लोग टाइम पास कर रहे हैं. फिर से वही बात पे कि जिंदगी बितानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा. तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो एजुकेशन लेके हरि का नाम. Oh man, Tanay, what a great episode.
थैंक यू 10 on 10. Thank you. You have entertained. I did not come to this episode with the expectation of having this conversation. थैंक यू मतलब आप एंटरटेनिंग फाइंड कर रहे हो, मुझे तो वो मजा आ रहा है कि इतनी ऑब्वियस चीजें एंटरटेनिंग कैसे हैं. आप जैसे बोल रहे हो. It's not. मतलब जब कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस देखता है तो उसको मजा आता है मुन्ना भाई एमबीबीएस देखने में, बट वो तो ऑब्वियस है ना कि भाई वो तो है ही वो सिस्टम इज डिजाइन लाइक दैट. एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं, यही विधु विनोद चोपड़ा करता है. हाँ. एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से एक मूवी को दिखाता है. पीके में क्या किया उसने अर्थ लिंक्स को यानी पृथ्वीवासियों को एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से दिखाया. तो जब आप रिलीजन को बाहर के लाइन से देखना शुरू किए तो आपको फनी लगने लगा, आपको अजीब लगने लगी, आपने सिस्टम्स को क्वेश्चन करने लगा. तो बस मेरा काम यही है कि सिस्टम्स को बाहर से देखता हूँ और फिर मुझे लगता है कि यार ये तो क्या है, ये मतलब ये तो झोल चल रहा है, सबका रंग नंबर लगा हुआ है. चलिए आपको मजा आया, अच्छा लगा. Thank you so much for being on the show. But before we end, you have to sing for us. That's what every guest does. हाँ ठीक है. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो हो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना. ओ ठीक है. Thanks for watching, folks. See you in the next episode. थैंक यू.